Every day things are changing. आपका आज वो बच्चा कहता है हाय डैडी, मैं तो कभी अपने वाले से ऐसे नहीं कह सकता. नाउ यू नीड टू अडॉप्ट, यू नीड टू लिसन. पहले मगरिब के बाद आप घर से नहीं निकलते थे. आज का बच्चा 9:30 बजे खड़ा होता है, डैडी वो फ्रेंड्स की एक बुलाया हुआ है, जा रहा हूं, बस इतना काफी है. मैं अगर बहस करूंगा तो वो बेकार है. मैं समझा सकता हूं. तो समटाइम यू नीड टू बी अडॉप्टेबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. आज की दुनिया में खासतौर. आगे चलेंगे, आगे कैन यू ये जरा चलाएंगे आप प्रोड्यूसर ये जरा. ये बड़ी pertinent video है. Hi, this is Brent Kelly at BizGriz. I'm going to take a few minutes and just talk about values and your value system. I think this will be beneficial to you. It's been beneficial to me. You know, so often we look in society and we look at outside influences, and that could be maybe a coworker or a boss, or even more personally, your family, your spouse, your child, your parent, to help define your values. But what makes you uniquely you and special is the fact that you have your own set of values that are important to you and how you want to contribute to society. So I'm going to, again, take just a couple minutes and help you kind of walk this process. It's been so beneficial to me. I did a value assessment a while back, and there was a list of about 50 or 60 values. And these are all great values: confidence, optimism, success, growth, vision, integrity. You know, you can go down the list of all these different values that anyone can say, that would be great. But everybody's got a special core set of values that mean the most to you. So if someone tells you, hey, you're really optimistic, you're that optimistic guy, hey, you might be, but maybe there's something even deeper to you that's more important. And what I want to stress here is it's got to be your own value systems, not, again, what society or the world is telling you. So I want to take a few minutes and just walk you through an idea. I want you to jot down 5 or 10 values that are most important to you, come off the top of your head. The first thing you think of, and again, I'm going to give you some samples: enthusiasm, humor, confidence, success, wisdom. You know, just think of all the things that potentially could be valuable to you, and just jot those down. So just take a few moments and do that right now. And then when you get that done, I want you to take it and really scale this back. I want you to find the 3. It's just the 3 values that are most important to you, kind of your center, your compass, your guide. And they become everything that you're about. So everything that you do each and every day, if they don't follow or fit these particular values, then don't do it. It's simple as that. Because these 3 values become the core of who you are. I'll give you an example. I worked hard on mine because there's so many things like, I want to be optimistic and confident. Those are all great things, and I believe in that. But I ended up settling on 3 things. I settle on vision, I settle on passion because I want to be truly passionate about everything that I do, and I settle on integrity. I figured if I could have great vision and forethought, right, and be able to think of things differently, and do that with passion, at the same time do everything with integrity, then everything else will take care of itself. So everything that I try to do is got to fit those 3 value categories, or I simply am not going to do it. So if I'm not passionate about something, if I don't think long term it's going to have a good place in my life, or if I don't think if it's compromising my integrity, I simply say no. So you can do the same thing in your life, whatever those values are. And if you need help, email me, Brent at bizgriz.com. I'd be happy to send you some suggestions and things. But it's really, really important. Again, it's too often we let others tell us what our values should be, and never really stop and take time and reflect what's most important to you, right? What's most important in your life. So I hope this was helpful to you. Take some time to do the exercise. I mean, write down 10 values and then narrow it down to 3. And if you're like me, narrow it down to 3 is going to be really, really difficult. It doesn't. Okay. मेरा ख्याल है कि ये बात ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ कि आपके अंदर बिना है चीजें प्रोवाइडेड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. कभी कभी लोग बता रहे होते हैं आपको, तो उसको इग्नोर नहीं कीजिए. अगर वो आपके बारे में कोई बात कहता है, जैसे ये जो 7 हैबिट्स की पहली है, उसने कहा कि अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आप थप्पड़ मत मारिए. आप ये सोचिए कि उस शख्स ने आपको थप्पड़ मारा क्यों. ये तो बड़ी मोहब्बत का वाला है. तो जिंदगी में सीखने के लिए बहुत कुछ है.
कोई एक लफ्ज मिलता है आप उसको सीख सकते हैं, और नहीं तो कभी नहीं सीख सकते। ये आप एक्सरसाइज मैं यंगस्टर के लिए जरूर कहूंगा कि अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट और अपनी स्ट्रेंथ्स को उस जॉब के लिहाज से, उस माहौल के लिहाज से जहां आप एक्ट कर रहे हैं जरूर लीजिए, ये काम आती होती है। नेक्स्ट प्लीज। मैं थोड़ा सा सिर्फ टच कर लूँ ऑर्गेनाइजेशन को, आगे चलिए। ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, आगे बताएगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन की जो assumption है, क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमिन्ड बाय द क्वालिटी ऑफ द पीपल वर्किंग देयर। हम जब वैल्यूज की बात करते हैं तो हम पुरखों की बात करते हैं, हम खानदान की बात करते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये शाह साहब का बेटा है, ये कुरैशी साहब का बेटा है, ये बच्चे लाजमी फलां के होंगे। क्यों? क्योंकि वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपने खानदान की वैल्यूज को, वो कहीं भी खड़े हो। आपने एक दरवाजा नोक किया, एक बच्चा आता है, कौन है? बेटा आपके फादर है। अब्बा जी भागता हुआ जाएगा और वो कह रहा होगा। एक बच्चा आता है, अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपको किससे मिला है? ये वो चीजें हैं जो आपको नजर आएंगी लोगों में, सोसाइटी में, ऑफिस में, कल्चर्स में। हमारे ऊपर है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। यस प्लीज। एम्प्लॉयज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन कहती है सर, लेकिन कभी हमने सोचा कि हम ये सोचें कि एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव भी कोई है, एम्प्लॉयर का भी एक पर्सपेक्टिव है। यस प्लीज। ग्रेट वर्क एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मुझे एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं। वर्क टुगेदर एज अ टीम, फैमिली, इन एन एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट। ये हमारा एम्प्लॉय करता है। प्रैक्टिकली कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में वाकई ऐसा एनवायरमेंट मिलता है, विच आर रेयर, लाइक फैमिलीज। कुछ फैमिलीज में आपको डिस्ट्रक्शन नजर आएगी, कुछ फैमिलीज में आपको एक मोहब्बत, खुलूस नजर आएगा। आगे चलो, कभी आप सोचिएगा एम्प्लॉइज क्या कहता है। वो कहता है ट्रस्ट ऑफ द पीपल वर्किंग, हम पे ट्रस्ट करो। हम में से बहुत से लोग छोटी छोटी चीजों को इतना मॉनिटर कर लेते हैं कि वो सामने वाला भी तंग हो जाता है कि भाई मेरे मुझसे काम का है, मैं कर लूंगा। दूसरा, प्राइड ऑन व्हाट दे डू। पकड़ करें लोग, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके शागिर्द हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉय हो। एंजॉय द वर्क विद। यू नीड टू क्रिएट एन एनवायरमेंट कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं दे फील गुड, एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड फेयरली। एक बड़ा इश्यू है, उसको प्रमोशन मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, इसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। मैं ये समझता हूं कि कभी मुझे भी अपने गिरबान में झांक के जरूर देख लेना चाहिए कि अगर उसका प्रमोशन हुआ और मेरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। सिंस हम अपने आप को मुबर्रा समझते हैं इन चीजों से, इसलिए हम कहते हैं कि ये इनजस्टिस हुआ है। होता है इनजस्टिस, मैं नहीं कहता नहीं होता है, लेकिन अगर आपने तरक्की की राहों पे जाना है तो आपने अपने आप को साइमल्टेनियसली इवैल्यूएट करना है, हर लेवल पे। इसका कोई लेवल नहीं है कि जॉब के अंदर अगर आप खुद सी ग्रेड में पास होते हैं और आप कहते हैं कि ये बेईमानी हो गई, बोर्ड वालों ने मुझे जान करके किया, भाई आपको करेगा भाई। आप खुद भी तो इवैल्यूएट करो कि हाउ मच टाइम यू डिवोटेड फॉर दी स्टडीज, फॉर दी अंडरस्टैंडिंग। यस प्लीज। नेवर ब्लेम योर ऑर्गेनाइजेशन। आज आप एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं और बाहर आके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, बजाय इसके कि आप उसको समझने की कोशिश करें, आप पिछली ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस जनरल आप अभी किसी से मिल के आए हैं, उससे काम करा के आए, बाहर आके दो आदमी से उसकी अच्छाई या बुराई कर रहे होते हैं, तो वो कहता है सिंपली नेवर ब्लेम द ऑर्गेनाइजेशन,
कम्युनिकेट एंड रिजॉल्व इश्यूज, लीव द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं काम करना छोड़ दीजिए आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, लेकिन याद रखिए वहां भी स्टेप 1 से शुरू होना होगा आपको, फिर अपनी एक गुडविल बनानी होगी। यस प्लीज, आगे नेक्स्ट स्लाइड। चलते रहे। सो आपको अगर अपने आप को जांचना है तो इंडस्ट्री में चौराहे पे खड़े हो जाइए और देख लीजिए कि मेरे जैसे जो लोग हैं और मैं फर्क क्या है, फिर तो आप कामयाब आदमी हो। लेकिन आप सिर्फ ब्लेम गेम करके अपने आप को लेके नहीं चल सकते। यस प्लीज। Now how values help? Values basically alignment, misalignment for result really happen. अगर आप वैल्यूज का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर एट्रीब्यूट्स का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, अलाइनमेंट वर्क पोटेंशियल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ये बेसिकली वैल्यूज आपको गाइड करती है, ये आपका रवैया गाइड करता है, ये आपका बिहेवियर गाइड करता है, ये आपका एटीट्यूड गाइड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और आप जाके सिर्फ ये सोचें कि मैं हूं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो अलाइनमेंट के लिए जरूरी है कि अपनी वैल्यूज का, अपने एट्रीब्यूट्स का, अपनी स्किल्स का, अपनी कॉम्पिटेंसीज का सही इस्तेमाल करें। एक बहू आके घर में नहीं कह सकती कि मेरे वालिद का घर बहुत अच्छा था, ये आप लोग क्या कर रहे हैं। उसको चाहिए कि वो पहले थोड़ा सा टाइम दे, उसको अंडरस्टैंड करे, उसके बाद शी हैज ऑल द राइट टू से यस प्लीज। वैल्यूज आर द बिलीफ बेसिकली। आपने कभी बरगद के दरख्त देखे? गांव देहातों में बड़े बड़े दरख्त लगे होते हैं। व्हाई दे स्टैंड? क्यों स्टैंड करते हैं आपके ख्याल में? डीप रूटेड। डीप रूटेड, वेरी गुड। उसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। और मैं इस चीज का बिलीवर हूं कि आप जिस शोबे में खड़े हुए हैं, अगर आपकी कॉम्पिटेंसीज, आपकी रूट्स मजबूत नहीं है उस कॉम्पिटेंसी के लिहाज से, यू कांट स्टैंड एनीवेयर। आपकी रूट्स अगर मजबूत है, आपकी कॉम्पिटेंसी अच्छी है, यू कैन स्टैंड। आपकी पर्सनैलिटी खुद बोलेगी, आप कहीं पे भी खुद खड़े हो सकते हैं, प्रोवाइडेड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। दैट रिफ्लेक्ट योर एटीट्यूड। एटीट्यूड बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है आपकी फीलिंग्स को। फिर लोग आपके बारे में कहते हैं कि बहुत सुलझा हुआ आदमी है, कि बहुत अगड़ा हुआ आदमी है, इसकी गर्दन ऐसी है, एंड दैट इम्पैक्ट ऑन योर रिजल्ट्स। आगे वैल्यूज बेसिकली, इसमें बीच में भी कुछ होगा, क्लिक करें, डरे नहीं आप। That someone sometime is worthwhile। मैं आपको 100 रुपए देता हूं, सबको मिलते हैं 100 रुपए, क्या सब एक ही चीज खरीदेंगे आपके ख्याल में? नहीं। Why? Needs and wants are different. Needs and wants are different. Yes। हर चीज की एक वर्थ है आपके लिए, आप अपनी वर्थ के हिसाब से चीज को लेने की कोशिश करेंगे। आप ये नहीं होगा कि मैंने बर्गर खरीदा तो आपने ही बर्गर खरीदा। आप हो सकता है कोई और चीज, कोई टॉय ले लें, कोई पेन ले लें, पेंसिल ले लें, स्टेशनरी ले लें। तो ये वैल्यूज से इसका भी रोल नहीं है। आप उन्हीं चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे जिसको आप वर्थ समझते हैं। अगर आप समझते हैं कि गाली देके काम होता है, तो शायद आपके लिए वो वर्थ हो, जो आपको अक्सर नजर आए। आपकी गाड़ी को किसी ने मार दिया और आप झगड़ा करने खड़े हो गए, गाड़ी तो डेंट लग गया, आप ये सोचे कि यहां से आउट हो आप किसी तरह से, बजाय इसके कि आप झगड़ा कर रहे हो। लग गई तो लग गई, जबकि गाड़ी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योर्ड है। आगे चले, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। Now, how we evaluate ourselves, how we know ourselves, we ask ourselves questions. Why am I in this job? अगर आप कहीं भी डिससेटिस्फाइड, ये सवाल अपने आप से पूछिए ना कि भाई मैं आया क्यों इस जॉब में? मैंने पढ़ा था फारसी और मैं बेच रहा हूं तेल,
तो ये सवाल का जवाब आपको खुद मिलेगा, बजाय इसके आप दोस्त से पूछें यार जॉब करूँ नहीं करूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ। ये तो आपके ऊपर है कि आप वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। कैन आई बी डूइंग समथिंग एल्स बेटर देन दिस, ये सवाल मुझे अपने आप से करना है। ये ना मुझे अम्मा अब्बा तो कहेंगे बेटा डॉक्टर बन जाओ, बेटा इंजीनियर बन जाओ, बेटा आईटी के एक्सपर्ट, आज की दुनिया में वो कहेंगे आईटी के एक्सपर्ट बन जाओ। लेकिन मेरी अपनी सोच क्या कहती है। माई सन वाज डन बीबीए अकाउंटिंग फ्रॉम IBA। जब 4-5 दिन जॉब में नहीं किया तो आई आस्क्ड माय मदर, हिज मदर, कि भाई क्या हुआ, सब बच्चे तो चले गए, कोई एंग्रो में लग गया, कोई कहीं लग गया। तो देन वन इवनिंग इज केम टू मी, सेड कि मैं अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाऊंगा। मैंने कहा भाई फिर ये पढ़ने की जरूरत क्या थी, कौन से जो एक बाप कर सकता है सवाल। Now it is 5th year of his software company. He has climbed worldwide. He is doing very well. तो रात भर जग के उसने सीखा, उसको समझ में आ गया था कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं शायद गलत फील्ड में चला गया। तो ये उसका अपना सवाल था और अपना ही जवाब था, और उसने करके दिखा दिया। प्रोवाइडेड कि हम अपने आप से खुद पूछें, what are my goals in life, achievement level, and how do I achieve goals? That gives you stimulation. What is stopping me from achieving goals? ये बच्चों के लिए तो बहुत है, या वो लोग जो जूनियर लेवल पे हैं अभी, कि मैं आगे बढ़ूंगा कैसे। We can't blame to सिंध गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, इदारे। We need to make our way. Yes, सपोर्ट होती है, लेकिन आज की दुनिया में भी लोग कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। What do I need to be successful? एक्शन होनी चाहिए। अगर आपके एक्शन नहीं है किसी के पास, then you are the winner. आगे चलो। Yes, we can, आगे इसको क्लिक करते जाएगा एक एक करके। We can provide you knowledge, learnings. We can provide you skills. But it is your attitude, whether you wanted to apply those things or not. ये मैं अभी आपको मिसाल दे चुका हूं कि रूट्स, किसी भी कॉम्पिटेंसी में अगर रूट्स नहीं है आपकी स्ट्रॉन्ग, तो आप कहीं भी खड़े नहीं हो सकते, आप गलत काम ही करेंगे। तो जैसे आते हैं ना आजकल इलेक्ट्रिशियन, घर में एक तो उड़ा के निकलते हैं, तो ट्रायल दे रहे होते हैं। रूट्स गिव यू योर कैरेक्टर। ये स्टेम जो होता है, ये जो पर्सनैलिटी है, ये सब मजबूत होती है जब आपके रूट्स मजबूत है, जब आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल मजबूत है। एंड देन ये शेडो जो बनता है, या लोग देख के आपके बारे में बात करते हैं। ये बड़ी बुक्स के अंदर, हार्वर्ड की बुक्स के अंदर की मिसाल है, बहुत सी जगहों पर। इससे ज्यादा सीखने के लिए और कोई चीज नहीं है। मैं वर्ड्स बहुत से इस्तेमाल कर सकता हूँ, बहुत सी स्टडीज दिखा दूंगा, लेकिन ये जो चीज आपके सामने है, ये आपको समझा रही है कि पपीते का दर्द जल्दी गिर जाता है क्योंकि रूट्स मजबूत नहीं होती है। आगे चलो, आगे नेक्स्ट। नाउ हाउ थिंग्स मूव, योर बिलीफ सिस्टम दैट हेल्प योर थॉट्स, your values help you कि आपको बनना कैसा है, and then that leads to your feeling, emotion positive होने चाहिए हमेशा, and ultimately you go for your action। आप किसी भी टास्क को लेते हैं, मतलब कोई, मैं सिर्फ ऑफिस के जॉब्स की बात नहीं कर रहा, घरों की बात नहीं कर रहा, एनी टास्क यू डू एवरी डे, तो ये चेन है या नहीं, ये साइकिल यही होती है। कभी आप दुखे दिल के साथ काम कर लेते हैं और उसको अगर मोटिवेशन के साथ करें तो वही काम अच्छा भी लगता है आपको। आगे चलें। एट्रीब्यूट ही आपको कहीं खड़ा करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, लोग आपके बारे में ही बात करते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने वो डिस्प्ले कभी किया हो।
नेक्स्ट कहा जाता है, ये लाते रहे इसको, कि 1 to 7 आपकी जो वैल्यूज और रिलेशनशिप डेवलप होती है वो पेरेंट्स की वजह से होती है। बच्चे अपने पेरेंट्स को देख रहे होते हैं और 7 साल तक बच्चे के जहन में जो चीजें बैठ जाती हैं वो जिंदगी में कभी नहीं मिलती। वो बूढ़ा भी हो जाएगा, बिस्तर पे भी होगा, कुछ नहीं बोल रहा होगा, वो बात कर रहा होगा उस बचपन की, उन चीजों की। और हमें से बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो अपने बचपन के कुछ वाकयात, कुछ वालिदैन की सजाएं, कुछ मोहब्बत की बातें जरूर याद हैं। देन एज 8 to 13 टीचर्स, हीरोज, आइडियलिज्म होता है, स्पोर्ट्स। देन 14 से 20 तक peers, values become peers of peers because of values. Age 21 के बाद your values are established, but you may test your values for time to time. वो कहता है ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकती चीजें, चेंज हो सकती हैं बशर्ते कि आप उसको कोई माहौल दें। लेकिन यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी के बाद चीजें सीज हो जाती हैं, वो प्रैक्टिस, वो हैबिट्स, वो सारी चीजें आप वही लेके चलते लगे होते हैं। आगे चलें जी। ये वो जगह है जहां से आप चीजें सीखते हैं। स्कूल, सोसाइटी, फ्रेंड्स। मुझसे अगर आप पूछें तो स्कूल, यस, बहुत सी चीजें आप सीखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सिखाने वाला आपका घर है, आपकी सोसाइटी है। अगर आपने कुछ सीखना है, अगर कुछ इंप्लीमेंट करना है तो आप जाके वहां कीजिए, आसान होता है और हर सिचुएशन आती है जहां से आप लर्निंग करते हैं। आगे चलेंगे। देन यू हैव डिफरेंट कल्चर्स जहां से आप बहुत सी चीजें सीख रहे होते हैं। आगे चलिए। हमने एक एक्सरसाइज की और कहा कि जी जो प्रोफेशनल है उसके एट्रीब्यूट्स होने क्या चाहिए। आप इसको गौर से जरा देखें, ये हर प्रोफेशनल के लिए जरूरी है, कहीं ना कहीं यूज करेगा, अडॉप्टेड हो। पहली चीज है अडॉप्टेबिलिटी। आप 4 लोगों के साथ काम करते हैं और एक दिन आप उन्हीं के मैनेजर बनते हैं, आपके टास्क चेंज हो जाते हैं, उनसे काम लेना होता है, पहले उनके साथ मिलकर आप अपने कर रहे होते हैं, अब उनसे करवाना है। क्रिएटिव का मतलब ये नहीं है कि आप आर्टिस्ट। क्रिएटिव का मतलब है कि किसी प्रॉब्लम में आप फंस जाए, आप उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे आसानी से। दैट इज क्रिएटिविटी। टीम प्लेयर होना बहुत जरूरी है, चाहे आप घर में हो चाहे बाहर। यू नीड टू बी इंटेग्रिटी। अभी किसी ने एक वर्ड थोड़ी देर पहले बोला था, मैं कहता हूं कि किसी भी शख्स के लिए अगर इंटेग्रिटी नहीं है उसके अंदर तो नहीं। और ये उस वक्त आती है जब आप अंदर से मजबूत होते हैं, जब आप कॉम्पिटेंट होते हैं। ओनरशिप, टास्क ओनरशिप बहुत जरूरी है। आप स्टडी करते हैं, आपके लिए जरूरी है कि आप उसकी ओनरशिप लें कि मैंने ये मैट्रिक करना है या इंटर करना है या ए लेवल करना है या बीबीए करना है। देन नेवर गिव अप। आपको यह पता होगा कि जो इंडियन प्रेसिडेंट था अब्दुल कलाम, उन्होंने ये बात कही थी। बहुत से लोग कहते हैं ये बात, लेकिन उन्होंने कहा था कि नेवर गिव अप। कोई भी टास्क हो, देखिए होगा क्या, आप चले और गिरे, दूसरी मर्तबा अगर आपने बेवकूफी की और जगह जाते हुए गौर से नहीं देखा तो फिर गिरेंगे आप। तो ये कहता है कि नेवर गिव अप का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो फेलियर हो रहा है ना आपका, उससे आपकी लर्निंग होनी चाहिए, फिर तो सही है। मेरे जहन में था कि मैं आप लोग से ये एक्सरसाइज करवाता, लेकिन टाइम की कमी की वजह से ये चलेंगे आगे चलें। अच्छा, एक मिनट आइएगा वापस। इसमें जो सबसे अहम चीज बनती है, अगर आप इसके पहले लेटर को लें तो क्या वर्ड बनता है, देखिए आप, ACTION, एक्शन। Action is the end product of every planning. आगे
देन यू नीड टू बी एटिकेट होना चाहिए। ये वैल्यूज हैं कि आप जिस महफिल में जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, आपको ड्रेस कैसा पहनना चाहिए, आपको लोगों से गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए। ये वो चीजें जो कि हमारी जनरल लाइफ में। यस प्लीज। ये मेरी बेसिकली लास्ट स्लाइड्स हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा ये कुछ गलत हुआ है। दूसरा नेक्स्ट आइएगा। We have 4 powers. Everybody has 4 powers. बशर्ते कि वो उसको यूज कर लेगा। Every power. The power to like yourself as you are, who you are. अगर आप अपने आप को पहचान गए, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आप कहीं फेल नहीं होंगे। याद रखिए, यू कैन स्टैंड एनीवेयर, बशर्ते कि यू नो व्हाट यू आर। सेल्फ एक्सेप्टेंस। मैं मैट्रिक पास हूं, कोई मसला नहीं, बट मैं मैट्रिक तो पास हूं ना। मैं अफसर अगर हूं तो मुझे फिर अफसरी के वो तकाजे पूरे करने चाहिए जो होते हैं, टीम वर्क, एटिकेट्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सिस्टमेटिक प्रोसेस। सो पहली पावर जो इंसान को दी गई है, जो प्रोफेशनली आपके पास है, is power to know yourself. आप किसी भी पोजीशन पे जाए तो आप अपने आप को मैच करने की कोशिश करें कि यहां मैं पीछे बैठूंगा, आगे बैठूंगा, फ्रंट पे खड़ा होऊंगा। नेक्स्ट, द पावर टू आस्क। मेरे भाई, अगर मुझे कोई चीज नहीं आती तो मैं कर क्यों दिखाऊं? मुझे चाहिए इनसे पूछ लूं, इनसे पूछ लूं, उससे पूछ लूं, इससे पूछ लूं। बड़ा छोटा कोई नहीं होता। हर शख्स को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ नॉलेज, कैपेबिलिटी दी है। वो आपसे बेहतर है तो आप उससे पूछें। आप क्यों सोचते हैं कि मैं पूछूंगा तो ये बेटा मुझे क्या कहेगा? बेटे ने आपसे बेहतर पढ़ा है तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में पूछ लें। तो ये कहता है कि कहीं पे आपको प्रॉब्लम आए, इफ यू डोंट आस्क व्हाट वी वांट, हाउ आर वी गोइंग, आपका मेंटोर हो सकता है, आपका कोच हो सकता है, आपका कोई पेयर हो सकता है, वो आपसे बेहतर काम जानता है, चीजें जानता है। आप उससे पूछें। ये भी आपको दी गई है पावर, ये आपके पास है, बशर्ते कि हम इसको यूज करें। नेक्स्ट प्लीज। पावर टू डिसाइड। क्या डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं है हमारे पास? हर स्टेज पे है या नहीं है, ये बताते हैं। लेकिन हाउ मेनी टाइम वी एक्सरसाइज दिस पावर? Since we don't know the actual situation, हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते, तो हम डिसीजन नहीं लेते। जब डिसीजन नहीं लेते तो वक्त गुजर जाता है। सही। और कभी कभी आपको डिसीजन लेना पड़ता है अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, और ये जानते हुए भी कि रिपरकशन हो सकती है। ऐसा हो सकता है डिसीजन फेलियर होते हैं। एयरपोर्ट पे आपको याद होगा कि बीच में उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि आप आगे नहीं जा सकते। वो मैकडॉनल्ड के सामने खड़े थे। एक रात एक बहुत ही करीबी हमारे होने वाले दामाद आ रहे थे बाहर से। मैं और मिसेज गए। मैंने कहा कि जैसे मैं करूं करना है आपने। मैं आया, वो ऐसे वाला खड़ा हो गया। मैंने कहा बेगम साहब आ रही है, जाने देना। इसके अलावा मैंने उससे कोई बात नहीं की। बैकअप था मेरे पास कि मैंने बात क्या करनी है, कि अगर ये कुछ पूछेगा तो मैं कहूंगा क्या इसको। मैं हैरान। बेगम साहब थोड़ी सी उन्होंने रेजिस्टेंस शो की, तो मैंने कहा बुलाओ यार वो आ रहे। नेवर आस्क मी कि आप चले कैसे गए, आप हैं कौन। तो सम टाइम जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं तो आपके पास मटेरियल मौजूद होता है, आपके पास रिसर्च होती है पूरी, वर्कअप पहले होता है आपका, फिर आप काम करते। इट इज ऑल योर कॉन्फिडेंस विच प्ले रोल। आगे चलिए। लास्ट, द पावर टू फेल। फेल के माने किसी को पता है क्या है? सर, एनीबडी? फेल को अगर कोई डिस्क्राइब करते? सॉरी, ओके, फीडबैक, लर्निंग, वेरी गुड। देखिए,
F first, A for attempt, I for in, L for learning. First attempt in learning. अगर आप इसको इस तरह लेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। लर्निंग थी, ठीक है, गलत हो गया कोई बात, आइंदा से समझ के कदम रखूंगा। ये भी अब्दुल कलाम ने कहा। So it depends upon the price of the failure. प्राइस ऑफ द फेलियर। Sometimes you get to regret because of the आप यही देखिए, जब भी आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो उसके पीछे ऑप्शनल डिसीजन भी मौजूद होते हैं आपके पास, प्रायोरिटाइज करते हैं एंड देन यू टेक डिसीजन। तो रिस्क तो बिल्कुल है, रिस्क ऑप्टिमाइजेशन आप पहले वर्कआउट कर लेते हैं कि पॉसिबली क्या 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 हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई एक चीज नहीं है कि मैं कूद जाऊं जाके आग में, मुझे पता होता है जब मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इज अ प्रोसेस, उस प्रोसेस पे काम कर रहे होते हैं। यस प्लीज। If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. End is not the end. In fact, end means effort never dies. If you get no as an answer, remember no means next opportunity. So let's be positive. Think positive. जनाब दिल साहब आगे चलो, आगे। सर आप बहुत मुतासिर लगते हैं अब्दुल कलाम से। देखिए, जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, मैं ये जानता हूँ। एनी क्वेश्चन? सो दैट आई कम टू माय लास्ट लाइन। तीन चार बातें हैं। जमाना तो जिस तरह से बदल रहा है कि फेस टू फेस की जगह फेस टू स्क्रीन आती है। क्यों? देखिए, सवाल करना मेरा हाथ में, आप एक्सप्लेनेशन आ रही है, सवाल दोनों हाथ। फेस टू स्क्रीन आ गई। बेटे साहब को कुछ कहना होता है तो कहता है मैसेज कर दिया करेगा। सेकेंड पॉइंट, अथॉरिटीज जो है, चाहे कॉर्पोरेट लेवल पे हो, चाहे पर्सनल लेवल पे हो, चाहे सोशल हो, वो बहुत ज्यादा हार्म हो रही है। और अथॉरिटी की जगह एक और लफ्ज आना शुरू हो गया, वो है सपोर्ट। We should not, I'm not authorized to dictate my family, but I should support them in their positive actions. Second, थर्ड पॉइंट सर ये था कि आपने फरमाया, और ये बहुत आम मिसाल दी जाती है कि जो बच्चा होता है तो दूध पिलाते हैं। आई बिलीव दिस इज अ वेरी वेरी ओल्ड थिंग, आई थिंक 50 years बैक शायद ऐसा होता। अब वो माएँ जो किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं और अपने बेटे के स्टमक का ख्याल करती हैं, कैसे फीड मैंने 2 घंटे में देनी है और 2 ml देनी है या 3 ml देनी है, फिर 4 टाइम देनी है, 5 टाइम देनी है, तो वो बच्चे मैंने रोते हुए नहीं देखे। तो हमारे माशरे में जो चीज़ आपने फरमाई कही है, एक लफ्ज मिसिंग है, वो है मेकिंग द स्टैंडर्ड्स। जैसे हमें स्टैंडर्ड्स हमें बाउंड करते हैं कि हमें किस तरफ चलना है। लाल बत्ती इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, यहाँ पे रुकना है, चाहे दुनिया में किसी भी जगह। हाँ, लेफ्ट हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव, ये उसमें की प्राइस, ये उस वहाँ के रोडवेज का अपना एक तरतीब है कि ट्रैफिक कैसे चलेगी। तो जब तक हम स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे चीज़ों को, हम हैपेजर्ड रहेंगे। एंड द लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू ऐड, आपने डिसाइड एक लर्निंग का टूल ऐसा है जो शायद आपने इम्पोर्टेंट ना समझा होगा, वेरी बहुत इम्पोर्टेंट, और है टूरिज्म, ट्रैवल, जो है फ्रेंडशिप का, वो है कंपनी का, वो है डिफरेंट कल्चर में घुसने का, वो है डिफरेंट रिलीजन में घुसने का। मतलब मैं गुरुद्वारे को भी घुस जाऊँगा, मुझे वहाँ देखना है क्या होता है, बगैर ये सोचे कि मैं किस मजहब से। तो लर्निंग के लिए एनी ईयर एनी टाइम, नो एज। True. सो आई फिनिश नाउ योर। मेरा ख्याल है कि मेरी आपने बात की, मेरा जो टॉपिक था वो था अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। और जब भी आप किसी नए स्टेज पे आते हैं तो आप शायद उसी फेज में फॉल करते हैं। ये क्योंकि एक बड़ी कॉमन सी मिसाल दी जाती है, इसलिए ये बात की जाती है। आजकल बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन तो ओरिएंटेशन देती हैं,
लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो जो हमारी लोकल कंपनीज हैं या जो एंटरप्रेन्योरशिप है या सेठों का जो निज़ाम है, वहाँ पे वो कहते हैं आ गया मियाँ ये उठाए और काम करो, इसके अलावा कोई बात नहीं होती। ठीक है, तो हम जिस प्रोफेशन में बैठे हुए हैं वहाँ पे ABC लाजमी फॉलो होगी, स्टैंडर्ड लाजमी फॉलो होंगे। आपने स्टैंडर्ड की बात की, मैंने आपसे ये शुरू में बताया था कि मैं मगरिब के बाद मेरे फादर अलाउ नहीं करते थे कि मैं बाहर जाऊँ। मैंने कभी MSc तक फिल्म नहीं देखी। मेरे फादर कहते थे कि ये अच्छी चीज नहीं है, मैं मानता था उसका। बाद में जब रिटायर हो गए तो वो बैठ के इंडियन मूवीज देखते थे और फोटो के साथ देखते थे, लेकिन मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। वो एक वक्त की चेंज थी, मैंने भी रियलाइज किया। मैंने आपसे कहा कि आज बेटा 10 बजे आके मुझसे वो चाबी उठाता है, मुझसे कहता भी नहीं है कि मेरी मीटिंग है मैं जा रहा हूं, मैं पूछता भी नहीं, क्योंकि आपको सब ये कॉन्फिडेंस जरूर है कि यस ही इज गोइंग टू एमिट। ये ट्रस्ट जरूर होना चाहिए आपको अपने बच्चों पे कि ये बच्चा बाहर गया है तो किसी गलत काम से नहीं गया है, फिर तो सही है, आ जाएगा, दोस्तों में जाएगा, आएगा। लेकिन पहले वाले माँ बाप की तरह अब आप नहीं कर सकते। एवरी टाइम यू कैन नॉट, वो कहेगा रेडी बाहर निकल रहा हूँ तो अच्छी दुआ दे के निकालिए। तो वी नीड टू चेंज अवर सेल्फ बेसिकली। अब दोनों YouTube देखते हैं, बाप भी और बेटी। मैंने वो बता दिया आपको। तो और मेरा ख्याल है कि जो स्टैंडर्ड की बात थी, घरों में भी आपको स्टैंडर्ड नजर आते हैं। मैंने आपको एक मिसाल भी दी, बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है, ये तरबियत है माँ बाप की जो वो करते हैं। और हम अच्छे माँ बाप, अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं, अच्छे बड़े बन सकते हैं, अच्छे मेंटोर, अच्छे कोच भी बन सकते हैं, प्रोवाइडेड वी थिंक अबाउट इट। हम क्यों दूसरों को देखें, क्यों दूसरे से माशरे को देखें कि जहाँ बुराई हो रही। हमें चाहिए कि हम खुद अपने आप को उससे अलग करके चलें। मैंने तो देखा कि मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, रास्ता है, पोजीशन है। आप गलत तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, आपके लिए मुश्किल है। इसके बाद ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत जबरदस्त बात की। सुबह उस वक्त नहीं होती जब सूरज निकलता है, सुबह उस वक्त होती है जब आदमी। तो शायद कुछ नाकिस सी बातें जो मैंने की, उसमें से कोई एक बात ऐसी हो जो कि आपके दिल को पा जाए और आप उसके लिए चेंज आए। थैंक यू वेरी मच।